So, welcome back in Easy Learning Online Institute. I'm your trainer, Sunil Qureshi, and today we are going to forward to our next tense of the type of tenses of present. And today we will cover the present continuous tense. So, if you have any kind of question in a last lecture, and if you have some problem to be creating the structures and a practice, so you may ask me now, and then we will go forward. No, ma'am, no question. Is good? All clear. Yes, clear. Okay. So, welcome in a next part of our tenses. It's literally so amazing, and you will learn a lot of things from today's lesson, and your creation and your creativity to be making the sentences will gonna be improved after this session, inshallah. So most of the people, most of the students ask me a question that, ma'am, there are a lot of essays, there are 12 essays, so many, it's very complex to us to remember all about the requirement of the tense. So give us some kind of tips and tricks. So I always say that if you prepare the past and present tense, so your spoken English is going to be complete in it. Only past and present, and just let go the past. If you prepare the honestly the present tense, all the four types of the present tense, so your speaking will going to be improved day by day, and you completely become fluent in a spoken English. Spoken English क्या होती है जो हम डेली रूटीन में यूज कर रहे होते हैं. Did the recording is on or not? On. Okay. So let's begin from our today lesson. It's the present continuous tense. कॉन्टिन्यूस से ही आपको जाहिर हो रहा है कॉन्टिन्यूस ऐसी चीज होती है जो कि किसी चीज का कॉन्टिन्यू रहना, जारी रहना. फॉर एग्जाम्पल इन दिस स्मॉल पिक्चर यू कैन सी अ मैन इज इन अ स्टेट ऑफ रनिंग, and by the movement, by the gesture of the man, by the like steps of the feet, you can imagine that the man is on the just walking stage or running stage, right? So it's about the continuous. If I'm giving you some short sentences, as you can see in a green block, it is he is sitting down on a stair. मतलब वो सीढ़ियों पर जो है वो बैठ रहा है. He is wearing a grey hooded sweater. उसने grey hooded sweater जो है वो पहन रहा है. They were playing on a computer right now. वो कंप्यूटर पर खेल रहा है. The car is driving on the wrong side of the road. कार जो है वो wrong side of the road जो है वो गुजर रही है, ये जा रही है. मतलब ऐसे उर्दू फिक्रा जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं. Is it clear? Yes, yes, sir. Okay. So, for example, present continuous tense is used to tell us about an action which is going on a present time, and it is also called the present progressive tense. मतलब ऐसे काम जो कि प्रेजेंट में हो रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम क्लास ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, फैन चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, मैं बैठ रही हूँ, आप उठ रहे हैं. All right, so it's all about the things that is about in always in a continuity जो कि प्रेजेंट में continuous होते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज की कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. ठीक है. अब प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, मतलब अगर आपसे कहेंगे लेट अस नो अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्रेसिव टेंस, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, प्रोग्रेसिव टेंस तो 12 टेंसेस में से कोई नहीं है, तो प्रोग्रेसिव कहाँ से होगा? तो प्रोग्रेसिव टेंस वो टेंसेस होते हैं जो कॉन्टिन्यूस होते हैं. जैसे कि प्रोग्रेस हमेशा कभी भी वो नहीं रहती है कॉन्सोनेंट जिसे आप कहें, या आप कहें कि कभी भी स्टॉप नहीं होती है. प्रोग्रेस कभी भी अप नहीं होती है, कभी हाई नहीं होती है. इट्स ऑल अबाउट, फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है, उसकी प्रोग्रेस कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है, कभी न्यूट्रल होती है. इसी तरह से बिजनेस है, बिजनेस की प्रोग्रेस कभी अप डाउन होती रहती है, तो इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो हर चीज हमेशा अमल में रहती है, जारी रहती है. ठीक है. अब जैसे कि वो खेल रहे हैं या मैं जा रहा हूँ. नाउ आई एम गिविंग यू अ वन अमेजिंग टिप के जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी. हमारे पास टोटल 12 टेंसेज हैं. उन 12 टेंसेज में से जितने कॉन्टिन्यूस वाले टेंसेज हैं वो कितने हैं 12 में से? वो 3 में. मतलब ऐसे टेंस जिनके नेम में कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं. वो 6 है. 6 है. I think. बिल्कुल. अब इन 6 टेंसेज में जब भी ये आएगा कॉन्टिन्यूस, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी. तो इट्स मीन कि आपके 6 टेंसेस की फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता चल गई कि मतलब
जब भी कॉन्टिन्यूस को वर्ड में किसी टाइटल में या टेंस में देख लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है हमने आईएनजी को ऐड ऑन करना होता है हमेशा, ठीक है। जी और नेक्स्ट इसमें चलें तो इसके हेल्पिंग वर्ब पहले डू डज थे, अब यहाँ पर इज एम आ रहे हैं। मतलब इसका तो आपको पता है कि ऐसा टेंस होता है जिसमें हमेशा आपके जो एक इज को आप हमेशा अपने लिए यूज करते हैं, मतलब अपने आप को जब आप बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अपनी जात के बारे में बात करते हैं, तब आप हमेशा जो है वो इज यूज करते हैं नॉर्मली। और आर यूज करते हैं प्लूरल के लिए, और जो है इज यूज करेंगे हम सिंगुलर के लिए। इज इट क्लियर ना? यस यस ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। So let's get started. Here is we have this structure of today tense कि how to make a sentence, कि sentence कैसे बनता है। तमाम टेंसेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस टेंस चेंज होता जाएगा, उनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। पहले सब्जेक्ट के बाद डू डज आता था, अब यहाँ पर इज एम आर आ जाएगा। पहले फर्स्ट फॉर्म आती थी, अब आईएनजी आ जाएगी, एंड दैट्स इट। फॉर एग्जांपल मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाजार। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। पहले आता था आई, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है आई यूज हो रहा है, और आई गोइंग टू स्कूल। आप हमें पता है कि आई हमेशा जो है वो एम के साथ आएगा, और ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, कोई सिंपल नहीं है। इसलिए इसमें आई के साथ एम आएगा, और गो के साथ आई एन जी आ गया, एंड सिंपल, आई एम गोइंग टू स्कूल। हम यस उछल रहे हैं, वी आर जंपिंग, राइट। जंपिंग इज अ वर्ब जिसमें पूरी जो है ये एक मीनिंग है कि उछलना, मतलब तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग माई टाइम लिटरली। एंड वो गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एंड बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बारिश है ना, बारिश ही तो नहीं है, एक बारिश है, बारिश हो रही है, सिंगुलर है, इज लगाएंगे, इट इज रेनिंग, सिंपल, ठीक है। चलें, यस नेगेटिव आप जरा रीड करें इसको, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी आपके लिए जो है वो अमेजिंग हो जाएंगे। यस नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर नॉट नॉट एज बस वही चीज है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट with a little change of note after helping verb, we can change a simple sentence into negative. I am not going to school. मैं बाजार नहीं जा रहा। We are not jumping. Okay. You are not wasting my time. He एब्सोल्युटली। एंड यहाँ पर sorry, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंटरोगेटिव में क्या चेंजेस करते हैं हम? में वर्ब शुरू पे स्टार्ट में ले आते हैं और फिर वर्ब वर्ब हमेशा जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बैक हो जाता है, ठीक है। तो चले पढ़िए इसको। आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या मैं बाजार जा रहा हूँ? आर यू जंपिंग? क्या हम उछल रहे हैं? आर यू वेस्टिंग माई टाइम? क्या तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो? इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या वो गाना गा रहा है? इज इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही है? ओके Absolutely. And this is the very small changes that we do in our interrogative sentences, and our interrogative sentences become ready. Okay. So here is we have some small practice, and after this practice, we will move on to the next our speaking session that we will do. And हर टेंस के लास्ट पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो भी हम कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अहमद 9th क्लास में पढ़ रहा है, सो हाउ डू यू मेक दिस सेंटेंस? अहमद Okay, always just remember the subject in your mind, only subject, okay? I mean to say like the structure of the sentence के अच्छा पहले subject आता है, फिर helping verb आता है, फिर verb आता है ना object। आपने सोचना ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। अब जैसे कि अहमद 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो अब आप इसको बताओ। Ahmad is Ahmad is studying in ninth class. हम्म, सही है अहमद is studying in 9th class, very जी। good। गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। अ, गर्मी गर्मी को क्या समर लेंगे या क्या या लेंगे? ये समर, ये कह सकते हैं, तो समर सीजन, एंड यू कैन से दिस इज टेम्परेचर एज वेल। टेम्परेचर हाँ, एंड हीट टेम्परेचर इज टेम्परेचर, इंक्रीजिंग। या टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। हीट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग।
हाँ, the temperature is going increase. गोइंग इन, जी जी, आईएनजी भी आएगा, मगर इंक्रीजिंग वो नहीं आ सकता, इंक्रीजिंग। Increasing, yeah, you can okay, increasing is about बढ़ना, ठीक है। increasing यहाँ पर अगर हम कहें कि कुछ भी टेम्परेचर बढ़, इज नो नो नो, इंक्रीज। आई मीन टू से लाइक यहाँ पर जो वर्ब है ना, हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, तो गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी के साथ आईएनजी लगा दें, इंक्रीजिंग के साथ लगा दें, या फिर गोइंग के साथ लगा दें। बट ये एक रूल होता है कि आपने एक सेंटेंस में एक ही बार यूज करना होता है, नॉट वी हैव टू गोना बी यूज इन अ टू टाइम। अब जैसे कि हम पास्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि आई थिंक मैंने शायद आपको बताया हो, उसमें डिड आता है, तो हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के साथ, लेकिन जब दोनों में सेकंड यूज करेंगे तब रॉन्ग होगा। ओके, सो यू हैव टू बी जस्ट मेक श्योर कि आई हैव टू जस्ट या राइट द वन टाइम ऑफ द ओके हेल्पिंग। मैम, मैम ऐसा हो सकता है, वो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। या एब्सोल्युटली, जितना शॉर्ट आप सेंटेंस करते हैं वो इतना अच्छा होता है। ओके मैम, थैंक यू। अब नेक्स्ट, क्या तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो? इसमें इस यू, इज, नो, आर यू, इज आर यू, यू, सॉरी सॉरी या सॉरी सॉरी, आर यू प्लेइंग द क्रिकेट? आर यू गोइंग, बिकॉज आर हमें यू पता है गोइंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आर एंड आर यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट। आर यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट? आर यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट? ओके, वो मेहनत नहीं कर रहा। वो मेहनत नहीं कर रहा। he he is not hard working. He's not hard, okay, he is not doing hard Not work। doing hard work, not doing Yeah, hard work, वो आएगा सही से शुरू में आएगा okay, सही। अली, okay। अली वीडियो mm, देख रहा है, mm-hmm. अली वीडियो देख रहा है। अली इज वाचिंग द वीडियो। Yes, Ali is watching the video। okay, अगर कुछ sentences आपके mind में आ रहे हैं, you can create it, and otherwise let me give you some statements and let make it more fast। all right, okay, ओके मैम। आ रहे हैं कुछ sentences। नो मैम, okay, if क्लास I'm के saying दौरान it में then मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही ठीक हूँ। है। हाँ, आई एम आई एम स्टडीइंग। हाँ, I'm studying, very good। वो खेल रहा है। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वो हम खाना खा रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं। वी आर वी आर ईटिंग द फूड। या वी आर ईटिंग फूड एंड बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन आर, खेलने का प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग। प्लेइंग। हाँ, हमें बहुत बेसिक बोल जाता है कभी वो कभी। इसे नॉर्मल, हाँ भूल जाता है चिल्ड्रन जैसे आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर मैं प्लेइंग, बस प्लेइंग तक किया। मैं लिख रहा हूँ, जी मैम। मैं लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग। या आई एम राइटिंग, वेरी गुड। ओके, वो टीवी देख रहा है। वो टीवी देख रहा है, ही इज वाचिंग टीवी। हम काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग। वेरी गुड। मैं सबक याद कर रहा हूँ। मैं सबक याद कर रहा हूँ। आई एम आई एम याद करना है, क्या आएगा? पढ़ना याद रिमेम्बरिंग, करना, लर्निंग, पढ़ना, या यू कैन लर्निंग, से लर्निंग, लर्निंग। आई एम लर्निंग द द लेसन। लेसन, वेरी गुड। बच्चे शोर कर रहे हैं। बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे, चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन आर क्या आएगा मैम शोर करने? मेकिंग, चिल्ड्रन, जी, चिल्ड्रन मेकिंग आर नॉइज। मेकिंग नॉइस। मैं मेकिंग नॉइस। शोर करना, मुझे बच्चे अब शोर कर रहे हैं, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम, खाना बनाने को कुक कहते हैं, ठीक है। जी मैम। अच्छा, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग। आई एम ओके, कुकिंग द फूड भी कह सकते हैं, कुकिंग द फूड। हाँ, वैसे कुकिंग खुद में वर्ब है तो उसका मतलब यही होता है, खाना बनाने को कुकिंग कहते हैं, ओके ठीक है। मैम, गुड। वो गाड़ी चला रहा है।
वो गाड़ी चला रहा है, ही इज ड्राइविंग द कार, ओके, बच्चे हंस रहे हैं। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर लाफिंग। लाफिंग, लाफिंग मैम बेसिक बोल जाता है, इतना बेसिक कोई वर्ड है। बात नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं भूलेगा आपको। फॉर इंशाल्लाह एग्जाम्पल मैम, आई एम अभी काफी सेइंग इम्प्रूव। या। अच्छा, मैं अब आपको पहले हम दो तीन और सेंटेंसेस करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्टिविटी दूंगी, वो हम करते हैं, ठीक है? ओके, ओके इफ आई मैम। एम सेइंग यू कि मैं हमजा खत लिख रहा है। हमजा खत लिख रहा है। हम्म, हमजा, हमजा इज राइटिंग द लेटर। मैं दोस्त से बात कर रही हूँ। आई आई एम, आई एम टॉकिंग। Well, I am talking with I am talking different. I am आई एम talking टॉकिंग। different या। with ओके friend. I ओके ओके, इफ आई एम से टू यू दैट बच्चे कहानी सुन रहे हैं। बच्चे कहानी सुन रहे हैं। Children are listening the story. Very good. And now I'm giving you some paragraph that is consist of a short story that is based on the present continuous tense. And just वो Okay, ma'am. आपने देखना है और आपने try करना है to be speak, okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Got it. मैम ऐसा ना करके, मतलब जैसे, मतलब लाइक पिछला मैंने प्रैक्टिस किया वो ना, आप एक थोड़े से सेंटेंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, 5 मिनट स्टार्टिंग के लेक्चर के, तो वो आप मेरे से सुन लें, ताकि उसका भी पता चल जाए कि किस तरह की, मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मुझे लास्ट से समझ आई है, स्टार्ट से समझ नहीं है आपकी। मैंने क्या, मतलब कल से ऐसा ना करे कि आप, मतलब मेरे से जो पिछला जैसे सेंटेंस ये वाला टेंस मैंने पढ़ा कल, इसकी कल तो नहीं, क्लास मंडे को, मतलब कि हाँ इसकी 5 मिनट मेरे से आप टेस्ट लें, 5 मिनट का, मतलब कोई पैराग्राफ हाँ आप बिल्कुल मुश्किल से लिख के बिल्कुल। रखें, वो मैं जो उसको मैं। हाँ बिल्कुल, चले अभी करते हैं आपके। जी। ओके ओके, जस्ट गिव मी मिनट। और आपको भाई, आपको भी मैंने असाइन किया था कि आपने ऐसे एलएलएम से एक स्टोरी लेनी है और उसको आपने कन्वर्ट जी। करके देखना है। जी मैं वो मैं किया था, मैंने वो चैट में आपको शेयर किया था, जो जेमिनाई थी, मैंने उधर ही किया था, रन टाइम थी। ओके, अब ये मैं आपको शेयर किया टेक्स्ट में, यू कैन ओपन इट एंड या ट्राई टू डू इट। ओके। ये तो काफी लेंथी है। एंड प्लीज बी ऑनेस्ट, ओके? ओके। Okay with that you create a problem message. I'm not gonna be say you anything. Just be honest. Okay. ओके। मैं व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट, कर लिया। आज 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 सुबह अली जल्दी उठ रहा है। मैम इंग्लिश में मैंने बताना था। मैम आवाज आ रही है मेरी? आज All right. आपने ये स्ट्रक्चर बना के रखे हैं या फिर आप लिख सकते हैं? Okay. I will give you 5 minutes to prepare it. See you in 5 minutes. Okay. ओके मैम। ओके मैम। And please be honest. ओके मैम। ओके मैम।
जी अस्सलाम वालेकुम. जी मैम, वालेकुम अस्सलाम. Have जी you मैम. done that? Yes मैम. Great. So yeah, show me, and you can also just speak about the story. Okay ma'am. But I cannot return. Just No problem, no problem. Okay, just try to do it. today. Today Ali Ali get Ali is getting up early in the morning. Uh, Hmm. he um, he brushing his teeth Uh, uh, and taking breakfast. His mother is cooking in the kitchen. His father uh, uh, reading the newspaper and taking tea. hmm. Ali Ali is preparing uh, for the school. Uh, he uh, he uh, he he placing the bag. He is placing the books in the bag. His sister singing a song and playing. Outdoor children are playing and making sound, making noise. Uh, Hmm. Ali is waiting for bus and talking friends Hmm. with friend. Uh, Bus is coming and uh, he is going to school. Hmm. In the school, uh, teachers are uh, teaching the teachers are teaching in the school, and uh, children making the noise. Ali taking notes and solving the questions. In the break, Very good. in the break, children is playing uh, uh, and laughing. Hmm. Uh, after after he going to he going to he going home after the school uh, Okay. at night his mother uh, his mother uh, taking food and fam at night his mother taking food and fam uh, and uh, sitting with family. Ali Hmm. Ali is doing homework. Ali is doing homework and uh, preparing for sleep. Hmm. He is happy. He is happy because he uh, he is busy. He Spending a. he's, Hmm. he's spending all the day busy. Yeah. A wonderful practice that you did and a first time is literally so amazing, but there are some small error about it. For example, if I'm giving you for example, in a starting, as you say, that is, the teacher is teaching and the students are listening. Yeah, so these kind of things that you say, and for example, इसमें शायद आपने ऐसे कहा था कि टीचर्स जो है वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं, मतलब एक सेंटेंस को आप डेफिनेटली कैसे कर सकते हैं ना. Okay, ma'am. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर ये है कि ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज स्पेंडिंग अ बिजी डे. Yes, yes, ma'am. ऐसे ही होता है. हाँ, एंड बहुत सिंपल सिंपल स्मॉल स्मॉल है, बाकी इट्स अमेजिंग ना.
कि आपने फर्स्ट टाइम ही इसको अभी हमने पढ़ा और अभी आपने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली। एंड दीज प्रैक्टिसेस मेक्स यू that comfortable with you, that how to speak it, and if a person is learned and how to giving the answer and casually and spokenly, so yeah, you become the comfortable in English. So you can give the any kind of question, you can express your ideas, you can express your thoughts. For example, I am speaking English and you are listening. Okay, so I can speak, I can listen, I can understand as well. But now stage you can speak but more than you can understand. मतलब आपको speaking से ज़्यादा समझ आती है English, right? मतलब Yes, ma'am. इतना आप उसको express नहीं कर पाते, but मैं जो भी बोलती हूँ, ये जो कोई भी जो बोलता है आपको समझ आती है, ठीक है? Your Yes, ma'am. understanding level is good. But if we didn't give it to the that kind of understanding level, अगर हम किसी चीज़ को understanding आपके पास है लेकिन फिर भी हम जो है उसमें आई मीन के उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो हम उस चीज़ को जो है वो लूज़ कर सकते हैं। सो इसको आप अंडरस्टैंडिंग में कैसे लेके आएँगे? बाय ऑलवेज़ प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ। एंड अगर आपने इंग्लिश कोर्स में एनरोल कर लिया है तो आपकी हर चीज़ अब इंग्लिश में हो जानी चाहिए। मतलब एज़ आई से यू एंड एज़ आई assign you some kind of learn practices that you can, for example, starting in a front of a mirror, you can speak about it, you can speak about your goal and what's about your daily, because every person have a different task on a day. हमारे मंथली गोल्स अलग होते हैं, वीकली अलग होते हैं और डेली अलग होते हैं. So you can talk about it and you can practice on it, and yeah, there are many more ways that you can, but now you are on a stage on प्रैक्टिसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. मतलब आपको समझ भी आ रहा है और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें सिर्फ समझ आता है और हम उसको पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते. ऐसा है ना? मतलब अगर हमें क्लास में पढ़ लिया तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है हमें आगे, लेकिन अब आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो इट्स ह्यूज थिंग. सो या इसके आपने और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और सम प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं. हम क्लास में भी करेंगे और आप खुद से भी कर सकते हैं और वो आपकी चेकआउट भी करूँगी. एंड मैंने ये नोट किया कि लास्ट टाइम जब हमने क्लास ली थी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आप थोड़ा-सा जो है वो गैप लेकर आ रहे थे, आपके लॉन्ग पॉजेज़ थे, बट नाउ वो लॉन्ग पॉजेज़ बहुत कम हो चुके हैं. मतलब आपने पहले जो फर्स्ट टाइम हमने किया था उसमें एक प्रॉब्लम ये हमने फेस किया था कि आप उसमें जैसे इज़ वगैरह भी लेके आ रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि सब्जेक्ट आएगा या वर्ब आएगा. बट नाउ आई assume and I imagine that you 100% understand the structure, right? और उस Yes, ma'am. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपने बनाया, आपको पता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ आना है, और जब हम स्ट्रक्चर फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तब एवरीथिंग गोज टू बी स्मूथ. सो इट्स लिटरली सो Yes, गुड. yes, ma'am. Thank सो you very इसकी much, आपने ma'am. और प्रैक्टिस करनी है. वी विल मूव फॉरवर्ड इट, एंड इफ यू आर राइटिंग द प्रैक्टिस, नो प्रॉब्लम. अगर आप जेमिनी पे कर रहे हैं, आप कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आप करें. और जो आपके न्यू वर्ड्स जो आप सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल lucid is a word that is the thing we can say it's very easy for me. Most of the words that we learn but हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उन वर्ड्स को नहीं भूलना चाहते तो आप उसकी प्रैक्टिस करें. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नहीं भूलेंगे. इंशाल्लाह मैम. और मैम मैंने ये सोचा कि वीकेंड पे ना एक मिनट मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर वो लेंथी हो जाएगी. मैंने मैम ये हम्म. सोचा है कि वीकेंड पे जितना भी पढ़ा होगा ना वो